جب اس کی آنکھ کھلی تو سپیدہ سحر نمودار ہو رہا تھا۔ لکڑی کے کیبن کی ادھ کھلی کھڑکی سے جنگل کی مہک آمیز سرد ہوا اندر آ رہی تھی، جس سے ماحول میں چھائی کثافت کم ہونے کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ تڑپ کر اٹھا، اس کی آنکھوں میں خوف تیر رہا تھا۔ اف، مجھے تو یہ لاش کے ٹکڑے ٹھکانے لگانا تھے۔ اس نے خود غلامی کی۔ میں ایسے بے ہوشوں کی طرح کیوں سو گیا؟ رات میں نے ایک انسانی وجود کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے بعد ارادہ کیا تھا کہ جنگل کے مختلف حصوں میں یہ ٹکڑے دفن کر دوں گا اور باقی رات اپنے گھر پر ہی گزاروں گا۔ اسے اپنے ارادوں میں ناکامی ہوئی تھی۔ کیف و مستی کی حالت میں اسے ایسی نیند آئی کہ وہ اس حصے بخرے لاش شدہ پر ہی نیم دراز سو گیا تھا۔ خود کو خون و گوشت میں لت پت دیکھ کر وہ اپنی ابکائی پر قابو نہ رکھ پایا۔ رات میں لالٹین کا ملگجا اجالا اور دماغی کیفیت کچھ اور تھی، لیکن دن کی پھیلتی ہوئی روشنی میں یہ سب دیکھ کر اس کی خود کی حالت غیر ہونے لگی تھی۔ اس کے چہرے پر چھائی معصومیت، خوف اور پریشانی دیکھ کر کوئی یقین نہیں کر سکتا تھا کہ رات میں یہی شخص قصائی بنا ہوا تھا۔ اس نے ایک جانب رکھا ہوا اپنا مفلر اٹھایا اور تیزی سے اپنے منہ کے گرد لپیٹ لیا۔ بدبو کا احساس قدرے کم ہو گیا۔ مجھے سورج نکلنے سے پہلے یہ سب ٹھکانے لگانا ہوگا، اس نے سوچا اور تیزی سے لاش کے چھوٹے بڑے ٹکڑے اور ہڈیاں درمیانے سائز کے پلاسٹک کے تھیلوں میں ڈالنے لگا۔ اس نے 6 کے قریب تھیلے بنا کر انہیں ایک بوری میں منتقل کر دیا اور اپنے کندھے پر ڈھو لیا۔ خون بہہ جانے کے بعد وزن کافی کم ہو گیا تھا، لیکن پھر بھی ایک پورے انسانی وجود کو ڈھونا کوئی آسان کام نہ تھا۔ ایک بار تو وہ لڑکھڑا گیا، لیکن پہاڑوں کی پیداوار تھا، محنت کشی اور مضبوط جسم کے ساتھ مشقت کرنا اس کے لیے اب ایک عادت سی بن گئی تھی۔ وہ آگے بڑھا اور کیبن کے ایک کونے میں پڑا بیلچہ دوسرے ہاتھ میں اٹھایا۔ دروازہ کھول کر جب وہ باہر نکلا تو پرندوں کی چہچہاہٹ اور جنگل کی مہکار نے اس کا استقبال کیا۔ سبزے اور قدرت کی صنائی کا ایک ایسا منظر تھا جو دیکھنے والے کو مبہوت کر کے رکھ دیتا۔ جنگل کے پیڑ پودے، وہاں کی جنگلی حیات ایک خوشکن نظارہ پیش کر رہے تھے۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور ایک جانب چل پڑا۔ وہ ایسے موڈ میں نہیں تھا کہ ان خوبصورت سحر خیز لمحوں میں لطف کشید کرتا رہتا، اس لیے جنگل کے مختلف حصوں میں جا کر اس نے گڑھے کھودے اور تھیلوں کو دفن کر دیا۔ سخت زمین کو گہرائی میں کھودنا بھی ضروری تھا، ورنہ گوشت کی بو درندوں کو اپنی جانب متوجہ کر سکتی تھی اور وہ زمین کھود کر انسانی گوشت سے بھرے تھیلے نکال سکتے تھے۔ 1.5-2 گھنٹے کی کڑی محنت نے اسے پسینے میں شرابور کر دیا۔ یہ سب کرتے ہوئے اس کا دل خوف سے لرز رہا تھا۔ محنت مشقت کی سے پرواہ نہیں تھی، لیکن یہ خوف اسے کھائی جا رہا تھا کہ کہیں کوئی اسے دیکھ نہ لے۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، اس نے آری تھیلا دفنانے کے بعد آسمان کی جانب سر اٹھا کر کہا۔ تھکن، خوف، کسل مندی کی جگہ ایک سرشاری نے لے لی تھی۔ کوئی ذی ہوش شخص اس کی ان حرکات کے بعد رب کا شکر ادا کرتا دیکھتا تو اس پر یقیناً حیرت کا پہاڑ ٹوٹ پڑتا، لیکن رب تو رب ہے اور وہ بے نیاز ہے، چاہے کوئی مومن ہو یا کافر، قاتل ہو یا مقتول، وہ سب کا رب ہے۔ اس رب نے ہمیں روزے قیامت تک آزادی دی ہے کہ اپنی راہ خود چن لیں، بھلائی کا راستہ اختیار کر کے نیکوکار بن جائیں یا پھر برائی کی راہ پر چلتے ہوئے گناہ کار۔ بس کچھ سیاہ کار ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنی بدعمالیوں پر پڑے پردے کی ڈھیل کو بھی خدا کی جانب سے نعمت سمجھ کر اپنے نامہ اعمال مزید تاریک کر لیتے ہیں۔ اپنی اس آپ بیتی کے سبب وہ اپنے کرتوتوں سے نظریں چرائے ایک خوشکن احساس کے ساتھ آبشار کی جانب جا رہا تھا، تاکہ کپڑوں اور خود پر لگے خون کے داغ دھو کر پھر سے معاشرے میں عزت دار بن کر گھومے۔ ویران علاقہ کسی خوددار جنگل میں تبدیل ہو چکا تھا۔ وہ ٹھہار جیپ میں وہاں سے ہراتی ہوئی نکلی اور ایک چھوٹی پہاڑی کو پار کرنے کے بعد سڑک پر آ گئی۔ سڑک کے ارد گرد اب فصلیں اور فارم ہاؤس کی بہتات دکھائی دینے لگی تھی۔ ایک قصبہ بھی دکھائی دینے لگا تھا جس کی مسجد کا مینار دور سے نظر آ رہا تھا۔ 50 کی سپیڈ لمٹ ہے۔ رشید نے جیپ کی تیز رفتاری پر حد رفتار کی نشاندہی کرنا مناسب سمجھا۔ ایک تو تیری چھوٹی سی بات پر ہوا نکل جاتی ہے۔ عرفان نے اپنی زبان سے چند غلیظ الفاظ نکالے، کیونکہ رشید کی مستقل چیں اس کے اعصاب پر سوار ہونے لگی تھی۔ میں تو پیدا ہی ڈرائیور ہوا تھا، اب تیری طرح کیا ڈر ڈر کے گاڑی چلاؤں گا؟ اس نے اپنی رفتار کم کیے بغیر ایک نظر رشید پر ڈالی جو اس کے جواب پر پیچو تاب کھا رہا تھا۔ واردات والی رات کے برعکس اب ان دونوں کے چہرے عیاں تھے۔ عرفان اچھی کاٹھی کا مالک، سانولی رنگت والا کڑیل نوجوان تھا، 6 فٹ سے نکلتا قد اور کسرتی بدن کا حامل۔ سیاہ بال اور شیر نما داڑھی اگر مناسب انداز میں تراشی ہوئی ہوتی تو وہ کافی معقول دکھائی دیتا۔ رشید اس کے برعکس فربی جسامت کا مائل تھا۔ درمیانی قد کی وجہ سے وہ موٹا لگتا تھا۔ سر کے چھوٹے بال اور داڑھی مونچھ سے پاک گول چہرہ قدرے نسوانی نقوش رکھتا تھا، اور سونے پر سہاگا اس نے ایک کان میں بالی پہن رکھی تھی۔ اس کی رنگت سرخ و سفید تھی، لیکن اس کے چہرے پر پریشانی ہوا دیدہ تھی۔ ہاتھوں اور بدن میں کپکپاہٹ اس کے مرتعش اعصاب کی عکاس تھی۔ اس کا قتل کا کوئی ارادہ نہ تھا،
लेकिन दौलत की लालच ने आंखों पर ऐसी पट्टी बांध दी कि वो इस हरकत का भी बिला सोचे समझे इर्तिकाब कर बैठा। मुझे तुम्हारी ड्राइविंग की महारत पर कोई शक नहीं है, रशीद ने मुहताज लहजे में कहा। मैं बस ये नहीं चाहता कि इस ओवर स्पीडिंग की वजह से रास्ते में कोई ट्रैफिक पुलिस वाला हमें रोक ले। इसकी निगाहें जीप के पिछले हिस्से पर मौजूद एक स्याह बैग का अहाता कर रही थी। लूट का माल उन्होंने छुपाने के बजाय सामने ही रखा था ताकि उठाकर भागना भी पड़े तो किसी किस्म की ताहीर ना हो। म्यूजियम से लूट मार के बाद उन्होंने फरार होने के लिए एक लंबा रास्ता इख्तियार किया था। इन्हें नाइट एक्सप्रेस के जरिए लाहौर पहुंचना था, जहां इन्हें लूट का माल सेठ अनवर सुपारी को देखकर अपनी मेहनत की अदायगी रकम की सूरत में वसूली करना थी। रशीद की नीयत शुरू से खराब थी। इसका पहले ही माल लूट कर माल पर कब्जे जमाने का इरादा था। जब मेहनत हम कर रहे हैं तो किसी और को हिस्सेदार क्यों बनाया। रशीद के सिर्फ इतना कहने पर ही इरफान इसका साथ देने पर राजी हो गया। छोटी मोटी वारदातों की बजाय एक बार ही लंबा हाथ मार लेने की ख्वाहिश जो पूरी होने लगी थी। इन दोनों ने साबका प्लान के मुताबिक अपने पुराने मॉडल की सुजुकी कार रेलवे स्टेशन के बाहर खड़ी की। यहाँ से उनका मंसूबा तब्दील हो गया और वो लाहौर की बजाय उन्होंने कराची के टिकट लिए और ट्रेन में बैठने के बाद चकलाला के प्लेटफॉर्म पर उतर गए। वहाँ से रक्षा पकड़कर वो रावलपिंडी की पुरानी गाड़ियों के बाजार पहुंचे। यहाँ पर इरफान के एक जानने वाले के तवस्सुत से एक चोरीशुदा पुरानी जीप को नया बना दिया गया था, जिसे लेकर वो अब इलाका गैर की जानिब रवाना थे। मोटरवे की बजाय उनकी तरजीह गैर मारूफ रास्ते रहे, इसलिए वो अब दारुल हुकूमत से काफ़ी दूर निकल आए थे। शुमाल की जानिब सफ़र में उनकी बदतदरीज बढ़ रही थी। अच्छा, इरफान ने गाड़ी कस्बे की सिमत घुमा दी। मैं ड्राइविंग करते करते थक गया हूँ और मुझे लैट्रिन जाना है। यार ज़ुबान तो अच्छी इस्तेमाल कर लिया कर, रशीद नागवारी से बोला। ये लैट्रिन क्या होता है? तुम वॉशरूम भी तो कह सकते थे। इन दोनों की आपस में दोस्ती और बेतकल्फी को ज़्यादा अरसा नहीं हुआ था, इसलिए इनकी गुफ्तगू तुम और तू के बैन बैन ही रहती थी और इस मामले पर कोई दूसरे पर मोतरिज नहीं था। तुम्हारी इतला क्लियर है कि लैट्रिन भी वॉशरूम की तरह अंग्रेजी ज़ुबान का लफ्ज़ है, लेकिन जाहिल लोग समझते हैं कि लैट्रिन हमारे कौमी ज़ुबान का लफ्ज़ है, इसलिए मॉडर्न बनने के चक्कर में इसे बोलते हुए मुंह बनाते हैं। अच्छा बस कर दे और वहाँ किसी ढाबे वगैरह पर ले जा। रशीद ने कहा, मुझे भूख लग रही है लेकिन रमज़ान की वजह से रास्ते में कुछ खाने को नहीं मिला। जो पेट्रोल पंप से हम लोगों ने चिप्स के 10 पैकेट लिए थे वो खाना नहीं था। इरफान ने हैरत से आंखें फाड़ते हुए कहा, और साथ ही जो कोक की 1.5 लीटर की बोतल पी रहे थे वो, यार वो तो चखने का सामान होता है। खैर असर का वक्त हो रहा है, अगर कोई ढाबा होटल वगैरह ना भी खुला हुआ तो समोसों पकौड़ों से पेट भरा जा सकता है, रशीद ने जवाब दिया। अगरचे इनके पास जीप में टिन पैक खाना मौजूद था, लेकिन इसे इस्तेमाल के बजाय वो फिलहाल कुछ ताज़ा खाने के ख्वाहिशमंद थे। डब्बे में बंद खाना उन्होंने अपने अगले सफर में पेश आने वाली मुश्किलात के लिए बचा कर रखा था। कस्बे का अकलौता होटल बसों के अड्डे के साथ वाक़ था, जहाँ एक कनात लगाकर एक हिस्सा इस तरह अलहदा किया गया था कि अंदर का मंजर दिखाई नहीं देता था। बाहर एक चार्ट लटक रहा था जिस पर गंदी सी लिखाई में मुसाफिरों के लिए होटल खुला है लिखा हुआ था। यहाँ पर पहले ही से कुछ ट्रक और लोडर वगैरह खड़े थे। एक बस भी मौजूद थी, लेकिन इसमें मुसाफिर कम दिखाई दे रहे थे। इमरान ने जीप एक कोने में रोक दी और पहले हाथ मुंह धोकर फ्रेश होने के लिए एक जानिब बने वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। सारे ही यहाँ पर तगड़े हैं, चाहे बच्चे हैं या फिर बड़े, पता नहीं क्या खाते हैं। वापस आकर इसने इलाके के लोगों को नाजायज रिश्तों में टांगते हुए तबसरा किया। रशीद इर्द गिर्द के माहौल का जायजा ले रहा था। चारपाइयों और बेंचों पर बैठने का इंतजाम था, जबकि दरमियान में एक संगी मेज भी रखी हुई थी। एक तरफ 2 ट्रक ड्राइवर एक साथ बैठे चाय पी रहे थे। एक जानिब चादर में लिपटा एक लंबा चौड़ा शख्स भी आ बैठा जो इरफान के पीछे पीछे ही दाखिल हुआ था, जबकि दरमियानी मेज में एक स्टूडेंट नौजवान भी मौजूद था जो वीडियो देख रहा था, जो कि अपने गोप्रो मैक्स कैमरा सामने रखकर अपने फ़ोन की स्क्रीन पर रिकॉर्ड की गई वीडियो देख रहा था। क्या क्या है खाने को? इरफान ने वेटर से पूछा, जो 14-15 साल का होने के बावजूद खूब लंबा तड़ंगा था। जवाब में वेटर ने रटारट मेन्यू दोहराना शुरू कर दिया। मेरे लिए चिकन पीस ले आओ, इरफान ने मेन्यू सुनकर कहा, और फिर रशीद की तरफ देखते हुए सवाल किया, तुम क्या खाओगे? मेरे लिए दाल और कौरमा मिक्स करके ले आओ। रशीद का इंतखाब सुनकर इरफान ने मुंह बनाया, लेकिन वेटर आर्डर लेकर चला गया। रशीद वेटर को जाता हुआ देख रहा था। इसकी नज़र कोने में बैठे भारी जुस्से वाले शख्स पर पड़ी। वो इन दोनों को ही देख रहा था और इसकी नज़रों में नागवारी वाज़ेह तौर पर महसूस हो रही थी। इसे देखकर वो एक जोजरी से लेकर रह गया। इसे जेल में गुजारे गए वक्त के गुंडे बदमाश नजर आ गए, जो इस जैसे दुबले और छोटे कद वालों को महज तफरीह के लिए तशद्दुद का निशाना बनाया करते। छोटी मोटी वारदातों के चक्कर में वो चंद महीने की जेल भी काट चुका था। पहले तो इसने सोचा कि जवाबन बारी जुस्से वाले को घूर कर देखे, लेकिन फिर इसने अपनी जानिब तवज्जो मबजूल कराना मुनासिब न समझा और अपना इरादा तर्क कर दिया। अभी इस तरह का पंगा लेने का वक्त नहीं था। वो अपने साथी की जानिब मुतवज्जो होते हुए बोला, आखिर हम वहाँ से बाहिफाजत निकल आए। हाँ, आखिर एक बड़ी वारदात में कामयाबी हो ही गई। इरफान ने रशीद की सरगोशी का बुलंद आवाज़ में जवाब दिया तो वो घबरा गया। बेवकूफ़, आवाज़ तो आहिस्ता रखो, वो दबी दबी आवाज़ में बोला। अच्छा अक्लमंद सीधा साहब। इरफान तनजन बोला, ओह मेरा मतलब है रशीद साहब, हम कामयाब हो गए हैं, यहाँ पर मेरा नाम मत लो। रशीद एक बार फिर सरगोशी करने वाले अंदाज में बोला, और जब तक हम बॉर्डर पार नहीं कर जाते खुद को कामयाब नहीं कह सकते। यहाँ कौन है सुनने वाला? इरफान ने बेनियाजी से कहा, लेकिन इस बार इसने पूरे माहौल का गर्दन घुमाकर जायजा ले लिया। हम इस्लामाबाद से कोई 300-400 किलोमीटर दूर आ चुके हैं। मुझे नहीं लगता कि किसी को हमारी वारदात के बारे में कुछ खबर है।
ये बात हम पूरे वसूख से नहीं कह सकते। रशीद ने रिसान से कहा। दोनों इस बात पर खामोश हो गए और वक्त गुजारी के लिए इधर उधर देखने लगे। भारी जुस्से वाले को चादर में लिपटे शख्स ने एक सिगरेट सुलगा दी, जिसकी देखा देखी इरफान ने भी यही किया। रशीद खाने के बाद सिगरेट पीता था, इसलिए इरफान के उड़ाए धुएं से ही लुत्फ कशीद करने लगा। चंद मिनट के बाद वेटर ने इनका खाना इनके सामने लाकर रख दिया। अबे ये तो कच्चा है। इरफान चिकन पीस के पहले ही निवाले पर चिल्ला उठा। वेटर जो कुछ फराहम करने के लिए इनके सर पर ही खड़ा था, गाली सुनकर सख्त कबीदा हाथिर हुआ, लेकिन गुस्सा जब्त करते हुए इसने इरफान के सामने से प्लेट उठाई और एक जानिब बने ढाबे के किचन की जानिब चला गया। रशीद ने अपना खाना खाते हुए महसूस किया कि बारी जुस्से वाले के चेहरे और आंखों में इस वाक़े के बाद नागवारी बढ़ गई। वेटर कुछ ही देर बाद चिकन पीस ले आया और मेज़ पर रख कर चला गया। इरफान ने एक और निवाला खाया, लेकिन शायद खाना अभी भी इसके मायार के मुताबिक नहीं था, इसलिए इसने वेटर को आवाज़ दी। रशीद खुद पर काबू ना रख सका और बेख्तियार बोला, यार इतने नखरे ना कर, तू घर पे नहीं बैठा, लेकिन चिकन पीस अभी भी कच्चा है। इरफान ने कहा, जितना पका है उतना ही खा लो ऊपर ऊपर से, और अगर नहीं पसंद तो मेरे वाला साल खा लो। रशीद ने इसे टोका, यहाँ पहाड़ी इलाके में गोश्त मुश्किल से गलता है, तुम्हारे बार बार वापस करने पर कोई लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है। क्या तुम चाहते हो कि वो लोग हमें याद रखें? रशीद की सर्जरिश ने हाथिर असर किया। इरफान ने इसके बाद खामोशी से खाना शुरू कर दिया। इसे भूख लगी हुई थी क्योंकि टॉफियों और चिप्स वगैरह से इसका पेट नहीं भरा था। खाने का बिल अदा करने के बाद वो दोनों जब जीप में जाकर बैठे तो चादर वाला शख्स इनके पीछे पीछे ही बाहर आ गया। इसने अपना बारी भरकम बाजू जीप की खिड़की के खुले शीशे पर रख दिया। अब तुझे क्या चाहिए? इरफान ने दुरुस्त लहजे में कहा। वो शख्स मुस्कुराया और अपना चेहरा खिड़की में तकरीबन दाखिल कर दिया। कान के पीछे से शुरू होने वाला एक गहरा जख्म का निशान था, जो कि इसकी गर्दन पर शाह रग तक आता था। इसके पीले दांत नाहमवार थे और मुंह में आने वाले नस्वार के भुबके इरफान अपने चेहरे पर वाज़ेह महसूस कर रहा था। हम तुम्हारे को एक नसीहत करने आया है, बारी जुस्से वाले ने ऐसे लहजे में कहा जिस बात का गुमाज था कि उर्दू इसकी मादरी ज़ुबान नहीं। कैसी नसीहत? इरफान के बजाय रशीद ने हैरानी से पूछा। हम लोग गाली बर्दाश्त नहीं करता, इस बार तुम जिंदा बच कर जा रहा, लेकिन फिर कभी इधर मत आना वरना तुम्हारा टुकड़ा टुकड़ा कर देगा। बारी जुस्से वाले ने धमकियां मेज लहजे में अपना मुद्दा बयान किया। मैं ऐसी घटिया जगह पर पेशाब करने भी ना हूँ। इरफान ने सख्त लहजे में जवाब दिया और एक्सीलेटर पर पाँव का दबाव बढ़ा दिया। जीप एक जन्नाटे से आगे बढ़ गई। बारी जुस्से वाले पर गर्द और बजरी गिरी। इरफान ने अकबी आईने में देखा तो बारी जुस्से वाले ने वहां से हिलने की कोशिश नहीं की। वो इनके ताक़ुब में नहीं आ रहा था। वो तेजी से जीप भगाता हुआ दूर ले गया। इलाका गैर तक पहुंचने में काफ़ी वक्त बाकी था। मंजिल अभी बहुत दूर थी और वो नहीं जानता था कि कुछ लोगों का सफ़र रास्ते में ही तमाम हो जाता है। पहाड़ों में दोपहर ढलने लगी थी। दानियाल इस वक्त एक 4 व्हील ब्लैक वीगो में ड्राइव कर रहा था, जो सुबह खरामी से मोटरवे पर महव सफ़र थी। सारा इसके साथ वाली पैसेंजर सीट पर बैठी थी। नाजिया ने CTF के बजट में कुछ गाड़ियाँ भी खरीदी थी, जिनमें इन लग्जरी गाड़ी का ये चंद साल पुराना मॉडल शामिल था। दीगर इदारों की तरह ये गाड़ी भी ज़ाती इस्तेमाल की बजाय इदारे के इस्तेमाल में आती थी। इसके लिए आम पुलिस, जो अक्सर मुजरिमों का ताक़ुब और इन्हें पकड़ने के लिए मुनासिब सवारी दस्तयाब न होने की शिकायत करती थी, इनके मुकाबले में CTF का इदारा बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने में कामयाब रहता था। हम नॉर्थ को जा रहे हैं। सारा ने दानियाल को मोटरवे 2 की बजाय मोटरवे 1 की तरफ गाड़ी का रुख फेरते देखकर सवाल किया, जो पेशावर की जानब जाती थी। क्योंकि मुझे लगता है कि मुजरिमों ने हमें चक्कर देने की कोशिश की है, दानियाल ने कहा। सारा अजायबघर तक तो तशवीश का हिस्सा रही और उन्होंने वहाँ वारदात में मुलविस सिक्योरिटी गार्ड से भी तफ्तीश की, लेकिन आगे रावलपिंडी के गुंजान हिस्सों में दानियाल ने अपने साथ ASI हाविर को ले लिया। कुछ तफसील बताओ, या ऐसे ही गाड़ी भगाते रहना है? अभी मैडम को रिपोर्ट करता हूँ, तुम भी सुन लो साथ में। ये कहकर दानियाल ने अपने फ़ोन से नाजिया को कॉल मिलाई और स्पीकर ऑन कर दिया। हाँ दानियाल, क्या रिपोर्ट है? नाजिया ने बगैर किसी तमहीद के फ़ोन उठाते ही सवाल कर दिया। मैडम, मुजरिमों को पकड़ने की पूरी कोशिश जारी है, दानियाल ने कहना शुरू कर दिया कि नाजिया ने इसकी बात काट दी। दानियाल, मैं जानती हूँ कि तुम इस वक्त ड्राइविंग कर रहे हो, इसलिए मुख्तसर अल्फाज मुझे ब्रीफ करो। नाजिया का लहजा बिल्कुल सपाट था। ओके मैडम, दानियाल ने गहरी सांस लेकर बात का आगाज़ किया। म्यूजियम के सिक्योरिटी गार्ड जो वारदात में मुलविस थे, वो मुजरिमों के बारे में कोई मालूमात नहीं रखते। इन्हें महज किसी किस्म की मुदाखलत से रोकने के लिए अदायगी की गई थी, इसलिए वो पूरी रात सोते रहे। दौरान वारदात शहीद हो जाने वाले गार्ड की वजह से हमें कामयाबी मिली है और हम मुजरिमों के नामों तक शनाख्त हासिल करने में कामयाब हुए हैं। वो किस तरह? नाजिया हैरान हुए बगैर न रह सकी। मैडम, वहाँ के हर गार्ड के पास एक महदूद दायरा कार में अमल करने वाला ट्रांसमीटर भी होता है, जिससे वो अपने साथियों के साथ गुफ्तगू कर सकता है। इस ट्रांसमीटर पर जो भी बातचीत ब्रॉडकास्ट की जाती है, वो वहाँ के कमांड सेंटर में रिकॉर्ड हो जाती है। वहाँ का अमला भी इस बात की अहमियत से पूरी तरह वाकिफ नहीं थे। हमने वारदात के वक्त वहाँ वाली रिकॉर्डिंग निकलवा कर सुनी तो मालूम हुआ कि गार्ड को इस वजह से कत्ल किया गया क्योंकि वो मुजरिमों को शनाख्त करने में कामयाब हो गया था। वो भी यकीनन अमले के लोग होंगे, नाजिया ने अंदाजा लगाया। यस मैडम। दानियाल इसके कामयाब अंदाजे पर 27 अंदाज में गोया हुआ। ये 2 बंदे हैं, जिनमें से एक इरफान नामी माली है, जबकि दूसरा रशीद नामी शख्स है जो टिकट काउंटर पर बैठा करता है।
वारदात के बाद दोनों ने लाहौर में अनवर सिपारी वाले को ये लूट का सामान पहुंचाना है, लेकिन मुझे लगता है कि वो इसे भी धोखा दे रहे हैं। सिपारी वाला नाम कैसे सामने आया और ये कैसे मालूम हुआ कि ये दोनों इसे भी धोखा दे रहे हैं? नाजिया ने सवाल किया। सिपारी वाले के हवाले से तो पुलिस ने अपनी रिवायती तफ्तीश से मालूम कर लिया, क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड को अदायगी करने वाला शख्स इसी का नुमाइंदा था। जबकि धोखे की बात का मुझे ऐसे पता चला है कि ये दोनों लाहौर की बजाय कराची वाली गाड़ी का स्टाफ भी तो लाहौर में ही है ना। फिर नाजिया के लहजे में उलझन नुमाया थी। इन मुजरिमों की रिकॉर्डिंग सुनने पर ऐसा तासुर मिला है कि वो चकलाला स्टेशन से सवार होंगे, लेकिन हकीकत इसके बरक्स थी। दानियाल ने तफसील बताना शुरू की। ये लोग मारगला स्टेशन से सवार हुए ताकि सिपारी वाला भी तफ्तीश करे तो इससे मालूम हो कि ये लोग ट्रेन पर चढ़े हैं, लेकिन बाद में ये चकलाला उतर गए। मैंने CCTV फुटेज निकलवाई तो इस बात की तस्दीक भी होगी। वहाँ पर मौजूद रक्षा टैक्सी वालों से तफ्तीश पर एक रक्षे वाले न सिर्फ इसे पहचान लिया बल्कि पुरानी गाड़ियों की मार्केट में उतारने का भी बताया। इनमें से एक लंबे वाले ने किराए के मामले में तो तकरार की थी, इसलिए ये सवारियां आरक्षक ड्राइवर को याद रह गई। आगे की बात मुझसे बताओ। नाजिया तफसील दिलचस्पी से सुनती रही, लेकिन शायद इसे दूसरी मसरूफियात से भी निपटना था, इसलिए गुफ्तगू में मजीद तफसील मुख्तर करने की तादीब किए बगैर न रह सकी। कम से कम अल्फाज यही हैं कि मेरी और हावर की तफ्तीश के मुताबिक ये दोनों एक पुठार जीप में इलाका यार की तरफ सफ़र कर रहे हैं। जीप के हसूल के हवाले से उन्होंने जिस बंदे से रब्ता किया था, इसकी तफसील आपको हावर बता देगा। मैं इस वक्त सारा के साथ मोटरवे पर हूँ और मुजरिम हमसे एक कदम आगे चल रहे हैं, लेकिन जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है हम इन्हें कमराट वैली या इसके आसपास इंटरप्ट कर पाएंगे। दानियाल ने एक ही सांस में बोल दिया। कमराट? नाजिया के लहजे में सरासीमगी नुमाया थी। जी मैडम। ओके। चंद लम्हों के तवक्कुफ के बाद नाजिया की आवाज़ आई। वहाँ पहुंचकर मुझे कॉल कर देना और अपना और सारा का ख्याल रखना। जी मैडम। दानियाल ने फ़ोन बंद करने से पहले कहा। ये मैडम को कमराट के नाम से क्या हुआ था? सारा ने कॉल करते ही सवाल किया। यानी सारी कहानी सुनने के बाद तुमने यही पूछना था कि जुलेहा मर्द थी या औरत? दानियाल ने कहा। क्या मतलब? सारा हफ्के भरे लहजे में बोली। मैंने कब जुलेहा की बात की? भाई इसका और क्या मतलब होगा कि केस के हवाले से तुमने कोई बात की नहीं और सीधा मैडम के कमराट के जिक्र पर बदलते तासुरात पर फौरन सवार कर डाला। दानियाल ने कहा। केस में समझने वाला क्या था जो पूछती? सब कुछ तो तफसीलन तुमने बता दिया था, सारा ने तेजी से कहा, लेकिन मैडम का रवैया समझ में नहीं आ रहा। तुम्हें गुलफाम की, मेरा मतलब है मैडम नाजिया की शोहर की शहादत के बारे में पता है? दानियाल ने पूछा। हाँ मालूम है मुझे। क्या सबको ही मालूम है? इस केस में ऐसा क्या हुआ था? सारा एक बार फिर जल्दी में बोली। लेकिन ये सब मेरे ज्वाइन करने से पहले हुआ था, इसलिए मुझे कभी तफसील नहीं मालूम हुई। मैडम भी इस मामले में बिल्कुल खामोश हो जाती हैं, इसलिए फ्रैंकनेस के बावजूद मैं इनसे नहीं पूछ पाई। कमराट वैली से इन सब बातों का क्या ताल्लुक? कमराट का तज़किरा किए बगैर गुलफाम की कहानी मुकम्मल हो ही नहीं सकती। इस वक्त CTF एक नया इदारा कायम हुआ था और हमारा पाला एक ऐसे सीरियल किलर से पड़ा था जो माजी से उठकर फिर जिंदा हो गया था। दानियाल ने तफसील बतानी शुरू की। ये एक ऐसा दूध में लिपटा कातिल का हयोला था जो हमारे अजीज दोस्त की जान ले गया और मैडम नाजिया को एक शहीद की बेवा बनना पड़ा। लेकिन इनकी हिम्मत को सलाम है कि आखिर में इस कातिल की मौत के अंजाम से हमकिनार करने में इनका बड़ा हाथ था। नाजिया किरमानी के बारे में ये हैरत अंगेज कहानी सुनकर सारा की दिलचस्पी बढ़ती जा रही थी और वो तमाम रास्ते कुरेद कर दानियाल से इसके बारे में सवाल करती रही, क्योंकि वो भी इस ऑपरेशन का हिस्सा था। वापस जाकर मैं ये पूरी फाइल पढ़ना पसंद करूंगी। सारा ने जब ये कहा तो मगरिब का वक्त होने लगा था। हाँ ज़रूर, दानियाल ने कहा, लेकिन अभी एक कस्बे का बोर्ड देखा है मैंने। मेरे ख्याल में यहाँ रुक कर अफ्तारी कर लें, फिर कुछ आराम के बाद आगे बढ़ते हैं। दानियाल ने ब्लैक वीगो एक ढाबा नुमा होटल के पास जाकर रोक ली। सारा ने खामोशी से तायद की और नीचे उतर गई। इसका वजूद नाजिया और गुलफाम की कहानी सुनकर पहले ही सनसना रहा था। रात का अंधेरा पूरे जंगल में छाया हुआ था। वो एक बार फिर लकड़ी के कैबिन में मौजूद था जहाँ लालटेन की मलगजी रोशनी फैली हुई थी। एक और लाश के टुकड़े इसके सामने बिखरे हुए थे। ये लाश किसी सयाह की थी। लॉन्ग निक्कर और पोलो टी शर्ट से निकले बाजू और टांगे इसने भुगदे के वार कर करके जिस्म से अलहदा कर दी थी। मध्यम रोशनी में कोई भी जीरू शख्स ये मंजर देख लेता तो खुद को अबकाइयाँ लेने से रोक ना सकता। खौफ, लज्जत और जोश से इसका चेहरा तमतमा रहा था। वहीं इसकी आंखों में सुर्ख डोरे भी तैर रहे थे। मुझे ये सब रोकना होगा, इसने खुद कलामी की। टूरिस्ट सीजन शुरू होने वाला है। रमज़ान में भी लोग फैमिली के साथ पूरा महीना रोज़े रखने के लिए यहाँ आते हैं। कहीं मैं पकड़ा ना जाऊँ। नहीं, मैं पकड़ा नहीं जा सकता। दिमाग ने जवाब दिया। माशरे में इतनी इज्जत है, सब फना हो जाएगी, लेकिन मैं कैसे रोकूंगा ये सब? वो एक बार फिर खुद से मुखातिब हुआ। कुछ अरसे के लिए यहाँ से चले जाओ। दिमाग में जवाब पूरा। मेरा जीना मरना, मेरे दोस्त अहबाब, मेरा पूरा खानदान, मेरा सब कुछ यहाँ है। इसने जवाब गढ़ा। मैं इन सब को कैसे लेके जा सकता हूँ अपने साथ? फिर एक ही हाल है, कैद। दिमाग ने एक और राह सुझाई। जैसे रमज़ान में इब्लीस कैद हो जाता है, वैसे ही अपने शैतान को कैद में डाल दो, फिर शायद तुम बच जाओ। वरना पुलिस ने तुम्हें ना पकड़ा तो लोग तुम्हें ढूंढ निकालेंगे और फिर निकलेगा तुम्हारी गैरत का जनाजा। नहीं, वो गया कर रह गया। मेरे लिए ये सब आसान नहीं। इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं होता। दिमाग के गोशे में एक कड़कती हुई आवाज़ सुनाई दी। तुम्हें ये सब करना ही होगा। वहशत के साथ साथ अब उस पर एक अजीब सा खौफ भी तारी हो चुका था। लाश के छोटे छोटे टुकड़े करके इसे फजर से बहुत पहले दफन करने थे, क्योंकि रमज़ान में सहरी के लिए लोग जल्दी बेदार हो जाते हैं। मैं ये सब करूँगा। वो तेज़ी से हाथ पैर चलाने लगा। इसकी जहनी रूह एक बार फिर से बहक गई। वो पूरी तवज्जो से लाश के टुकड़े कर रहा था और इसकी जुनूनियत और वहशत से भरपूर कार्रवाई का कोई गवाह नहीं था।
शैतान तो कैद था, लेकिन फिर भी शैतानियत अपनी पूरी शिद्दत के साथ 400 फैली हुई थी, क्योंकि हज़रत इंसान ने इस मामले में शैतान को खुद से कोसों पीछे छोड़ दिया था। हर जगह झगड़ा करके तमाशा बनाना ज़रूरी होता है क्या? रशीद के लहजे में गुस्सा नुमाया था। पिंडी में भी रिक्शे वाले से झगड़ा किया। अब इस कस्बे में 2 लोग ऐसे हैं जिनसे मुंहमारी कर चुके हो। अगर कोई महीनों बाद भी हमारे पीछे आया तो फ़ौरन हमें पहचान लेगा। दोनों के दरमियान गुफ्तगू में गुज़श्ता रोज़ होटल में खाने का तज़किरा आया तो रशीद अपने अंदर दबे गुस्से पर काबू ना रख पाया और फट पड़ा। किसी को कैसे पता चलेगा कि हम यहाँ आए हैं? इरफान ने बेनियाजी से कहा, वैसे भी इस लानती जगह पर फिर मैंने ज़िंदगी भर कभी नहीं आना, तो किसी का हिसाब चुकता करने में क्या हर्ज है? फजूल का झगड़ा मुफ्त में मुसीबत मोल लेने वाली बात है। रशीद बेयकीनी में सर हिलाकर रह गया और फिर गहरी सांस लेते हुए बोला, पुलिस काम करने पर आए तो किसी भी मुजरिम को तलाश कर सकती है। यहाँ पर इन्हें इनका हिस्सा नहीं मिलेगा तो पूरी कोशिश करेंगे कि हमें तलाश कर सकें। पहाड़ों में शाम के साए गहरे होने लगे थे, लेकिन सूरज की रोशनी ने अभी तक रात की तारीकी को शिकस्त दी हुई थी। इनकी पोठहार जीप अब एक तंग सड़क से गुजर रही थी जिसके इर्द गिर्द एक खूबसूरत जंगल फैला हुआ था। नबातात की महक ने माहौल को मुअत्तर किया हुआ था, लेकिन दोनों के जहन फरार के ख्यालात से परगंदा थे, इसलिए इस खूबसूरती को महसूस करने से आ रही थे। शरंगल नाम एक बड़ा शहर इनके पहलू में था और वो बआसानी थोड़ी देर में वहीं पहुंच सकते थे, लेकिन कस्बे से निकलने के बाद उन्होंने कमराट वैली जाने वाली सड़क का इंतखाब किया। बाद अज़ां उन्होंने कमराट की जानिब जाने के बजाय एक जैली सड़क मुंतहिब कर ली थी और अब जंगल के किनारे गुजर कर जा रहे थे। रात के लिए कोई ठिकाना मिल जाएगा या फिर कल की तरह कैंप लगाना पड़ेगा? इरफान ने सवाल किया तो रशीद चौंका रह गया। यहाँ पर सिग्नल इतने अच्छे नहीं आ रहे, वरना गूगल मैप पर देखकर अंदाजा कर लेता। रशीद ने अपने स्मार्टफोन पर देखते हुए कहा, जहाँ करीब तरीन लोकेशन जाज़बांडा की आ रही थी। इसके बाद मोबाइल पर सिग्नल वक्फे वक्फे से आ जा रहे थे। फिर इरफान ने एक लफ्ज़ी सवाल किया, फिर यह कि यहाँ जाड़ा बांडा नामी इलाके के करीब एक झील है जिसे लोग कटोरा लेक के नाम से जानते हैं। रशीद ने रसान से जवाब दिया, वहाँ पर अगर कोई होटल मिल गया तो अच्छी बात, वरना अपना हेमा ही लगा लेंगे। बजरीली सड़क पर इरफान जीप चलाता हुआ एक मोड़ मुड़ा तो वह तकरीबन जंगल में ही दाखिल हो गए। माहौल पर अब तारीकी का अंसर बढ़ गया था। इरफान को ना जाने क्या सूझी कि एक हाथ से स्टीयरिंग संभालते हुए इसने घूमकर दूसरे हाथ से पिछली सीट पर पड़ा हुआ बैग उठा लिया। लूट का माल इसी में था। बैग की जिप खोलकर इसने हंजर बाहर निकाल लिया। रशीद इसकी इस हरकत पर कोई रद्द-ए-अमल जाहिर न कर सका, इसलिए खामोशी से इसकी कार्रवाई को देखता रहा। मध्यम रोशनी में भी हंजर के दस्ते पर लगे जवाहरात की चमक मान नहीं पड़ी थी। इरफान ने म्यूजियम में इस हंजर का तारफी तख्ती कई बार पढ़ी थी, अगरचे इस हंजर को सिकंदर के हंजर से मौसूम किया जाता था, लेकिन चंद माहिरीन ने इसे मुगलिया दौर की निशानी करार दिया था। मुगलिया दौर का होने के बावजूद इसका ताल्लुक किसी मुगल बादशाह से साबित नहीं हुआ था, इसलिए सिकंदर आजम से मंसूब कर दिया गया था। हंजर पर जवाहरात के अलावा मौजूद नक्शो निगाह जाहिर करते थे कि इसे मौत की देवी के बींट चढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। जिस दौर का ये हंजर था उस वक्त इंसानी कुर्बानी खुफिया तौर पर की जाती थी, लेकिन इस दोधारी हंजर ने कई इंसानों का सीना चाक किया था। हंजर का फल तांबे का बना हुआ था और इम्ताद ज़माना के बायस बुरी तरह रंग आलूदा था, जबकि इसका दस्ता सोने के दस्ते से बना था जिसकी आबोताब अभी तक बरकरार थी। ये देख रहा है। हंजर हाथ में घुमाते हुए वह रशीद से मुखातिब हुआ। कोई यकीन कर सकता है कि इसकी मालियत 3.5 करोड़ है। अगर कोई सही गाहक मिल जाए तो शायद इससे भी ज़्यादा कीमत मिल जाए। रशीद के लहजे में लाल था। यार, कोई शौकीन मिजाज अरब शेख या जापानी बिजनेसमैन होगा ये जो खरीद ले। इरफान ने सरदाह भरते हुए कहा, वरना आखिर में यही करना पड़ेगा कि इसमें से हीरे जवाहर निकाल कर अलहदा बेचे जाए और इसमें लगे रूबी और नीलम 50-60 लाख के बिक जाएंगे और सोना भी पिघला कर आम मार्केट में फरोख्त किया जा सकता है। गुड़िया के जेवर भी तो है ना, रशीद ने इजाफा किया। इनका कोई ना कोई खरीदार ना मिला तो बाजार में आम जेवरात कहकर बेचे जा सकते हैं, लेकिन यार कहाँ 8-10 करोड़ के नवादात और कहाँ हम आम जेवरात के तौर पर बेचे तो 1-1.5 करोड़ मुश्किल हासिल कर पाएंगे। इरफान के लहजे में हसरत अब बुरी तरह से नुमाया होंगे। इरफान बस कर दे, रशीद चिल्लाकर बोला। एक तो मैं तेरी इस मनफी सोच से बढ़ता हूँ, हमेशा नेगेटिव ही सोचता है। 1-1.5 करोड़ हम जैसों के लिए कम है क्या? तेरे साथ किसी ने ज़बरदस्ती तो नहीं की? पता नहीं यार। इरफान ने खिड़की के पार मादूम होती हुई रोशनी में सनोबर के दरख्तों की तरफ देखते हुए कहा, इस वक्त तो आइडिया बड़ा ही अच्छा लग रहा था। आइडिया अभी भी अच्छा ही है, हमें मौका मिला तो हमने लंबा हाथ मार लिया। रशीद ने फौरन कहा, क्या सारी उम्र म्यूजियम में मैं टिकटें बेच कर गुजारा करता और तू वहाँ मालिक का काम करता रहता, तो क्या ये अच्छा था? तुझे सिपारी वाला की कोई फिक्र नहीं है? इरफान ने एक गहरी निगाह इस पर डालते हुए पूछा। लांत पेज पर रशीद हाथ झटकते हुए बोला, असल में इंडिया कांट्रवर्ड का डॉन है सिकंदर भाई। इसे शौक चढ़ा हुआ है सिकंदर के हंजर अपने पास रखने का, तो इसने सिपारी वाला को ये सब करने का कहा और इस सिकंदर भाई को पता चल गया तो इरफान के लहजे में तनाव था। यार, अब वो पाकिस्तान आने से तो रहा तो यही समझेगा कि सिपारी वाला ने इसे उल्लू बनाया है। रशीद ने तसल्ली अमेज़ लहजे में कहा, काश ऐसा ही हो। इरफान जो अब तक इस सोच को जहन से झटके हुए था, अब अपनी बातों से फिक्रमंद नजर आने लगा था। तू टेंशन ना ले, रशीद एक बार फिर तसल्ली देने लगा। सिपारी वाला जो मर्जी कर ले, इसके वहमो गुमान में भी नहीं आ सकता कि हम इस वक्त कटोरा झील के पास मजे लूट रहे हैं। कैसे मजे? इरफान ने कहा, लेकिन इसके लहजे से यहाँ था कि रशीद से बातचीत के बाद इसका दिल का बोझ हल्का हो गया है। गाड़ी आहिस्ता कर। सड़क अब कुछ बेहतर हो गई थी और एक जानिब वेलकम टू जाज़बांडा का बोर्ड लगा हुआ था और एक निशान था जो कटोरा झील की जानिब इशारा कर रहा था।
اس نے قصبے کی جانب مڑنے کے بجائے اپنا سفر جھیل کی جانب برقرار رکھا۔ وہ تھوڑا ہی آگے پہنچے لیکن گاڑی کی رفتار بڑھانے سے قبل اس نے بریک لگایا تو جیپ کو ایک جھٹکا سا لگا۔ یار یہ دیکھ تو صحیح، عرفان نے مشکل اپنی ہنسی سے باتیں ہوئے ایک طرف اشارہ کیا۔ زمانہ قدیم کے کسی مرغیوں جیسے دڑبے جیسی ایک لکڑی کی دکان تھی جس کے ارد گرد رنگ برنگے غبارے لگے ہوئے تھے۔ بچگانہ لکھائی میں سرخ پینٹ سے اس پر مچھلی فروش کا نام لکھا ہوا تھا۔ مچھلی فروش کا نام اگرچہ پڑھنے میں نہیں آ رہا تھا، البتہ وہ خود ضرور نظر آ رہا تھا۔ سفید ہوتے ہوئے کھچڑی بالوں اور ہشاشی داڑھی والا بوڑھا اس وقت اپنے سرمایہ حیات کو تالا لگا رہا تھا۔ یہ قفل بھی کوئی جدید نہیں تھا بلکہ ایک زنجیر نما کنڈی تھی جہاں اسے پھنسا کر لگایا گیا تھا۔ پاں عرفان جب اس کے پاس سے گزرا تو بلند آواز میں جیپ کا ہارن بجایا اور بڑی دیر تک بجاتا ہی چلا گیا۔ یہ کیا بےہودگی ہے؟ رشید اس کی اس حرکت پر تلملا اٹھا۔ ارے یار دیکھ تو صحیح، ایسے کون غبارے لگا کر مچھلی بیچتا ہے؟ عرفان نے بھی تلخی سے کہا، اور پریشانی دور کرنے کے لیے کوئی چھوٹی موٹی شرارت کر لو تو اس پر ایسے سیخ پا ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ تو بھائی ایسا کر جیپ کی اسکرین پر ہی لکھوا لے کہ میوزیم کے ڈاکو ہم ہیں۔ رشید غصے سے بولا۔ کیا مطلب؟ عرفان نے بوکھلا کر پوچھا۔ جہاں جہاں سے ہم گزر رہے ہیں تم وہاں پر کوئی نہ کوئی ایسی حرکت کر رہی ہو کہ ہمارا پیچھا کرنے والوں کو سراغ لگانا آسان ہو جائے۔ رشید نے کہا، پولیس نہ آئی تو سپاری والا کے بندے آ جائیں گے۔ یار ابھی تو مجھے تسلیاں دے رہا تھا، اب خود ہی سپاری والا کی ٹینشن لے رہا ہے۔ عرفان بولا تو اس کے لہجے میں پریشانی کی بجائے اطمینان نمایا تھا۔ یہاں ہمیں تلاش کرنا آسان کام نہیں، ویسے بھی ہم جلد علاقہ غیر میں پہنچ جائیں گے، تو قانون کیا سپاری والا بھی ہم پر انگلی نہیں اٹھا سکے گا۔ رشید نے کوئی جواب نہ دیا اور خاموشی سے اپنے ہونٹ چباتا رہا۔ درختوں کی اوٹ سے اچانک ہی جھیل والا علاقہ شروع ہو گیا۔ گاڑی چلاتے ہوئے وہ کیبن تک پہنچ گئے جو غیر آباد معلوم ہوتا تھا۔ جائزے کے بعد انہوں نے تالا توڑ کر وہی قیام کا فیصلہ کیا۔ چل بھی شیدے، رات کا انتظام تو ہو گیا ہے، عرفان نے رشید کو چڑھانے والے انداز میں کہا۔ میں چلا پانی میں تیراکی کرنے، تو بھی آ جا اور 2-4 مچھلیاں پکڑ لے۔ مجھے تیرنا نہیں آتا، رشید نے کہا۔ وہ ضروری سامان جیپ سے کیبن میں منتقل کر رہا تھا۔ چل اگلی بار تجھے تیرنا بھی سکھا دوں گا۔ اپنی شرٹ اتار کر سائڈ پر پھینک کر عرفان نے اپنے کثرتی جسم کی نمائش کرتے ہوئے جھیل کی جانب بڑھنے کا فیصلہ کر لیا۔ اپنے تئیں وہ یہ فیصلہ کر چکا تھا، لیکن وقت کے فیصلے بہت مختلف ہوتے ہیں۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ جس اگلی بار کا وہ تذکرہ کر رہا ہے وہ اس کی زندگی میں اب کبھی نہیں آئے گا۔